نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ جسے نصیب نہیں تیرے عشق کی دولت، جسے نصیب نہیں تیرے عشق کی دولت، وہ بادشاہ بھی مجھ کو غریب لگتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی نظر پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس رمضان کے مقدس بابرکت عظیم مہینے میں جہاں پہ مسلمانان عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، وہیں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت رمضان المقدس کے بابرکت مہینے میں لاک ڈاؤن کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے غریبوں، یتیموں، فقیروں، محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، تعاون فرماتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ و فطرات ہی کے ذریعے سے نہیں، زکوٰۃ و فطرات تو صاحب نصاب پہ نکالنا واجب ہے، اس پہ فرض ہے، وہ نہیں نکالتے تو بہت بڑے گنہگار اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ و فطرات کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے صاحب حیثیت ہیں جو اپنا ذاتی مال غریبوں، محتاجوں، فقیروں کو دے رہے ہیں اور خوب دی کھول کر کے ان کی امداد کر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رمضان المقدس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے اور ان کے عطیات کو قبول و مقبول فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں خوب برکتیں، خوب رحمتیں عطا فرمائے، اور ہر مرض، ہر بیماری، خصوصیت کے ساتھ کرونا وائرس سے ان تمامی حضرات کو محفوظ فرمائے اور عالم اسلام کو کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرات، غریبوں، فقیروں کی امداد لوگ دل کھول کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ حضرات، اسی سلسلے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اللہ اس کا رسول کتنا راضی ہوتا ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے کے مقامات کتنے اعلیٰ عرفہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دیکھیے، ہم ایک اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اور بندے مومن کی عبادت و ریاضت کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بغداد کے ایک بہت ہی مشہور و معروف اولیاء کرام میں سے ایک ولی ہیں، اور اس زمانے میں آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا، اور حج کے ارکان کے ادا کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے قریب حرم شریف میں بیٹھا، مجھے نیند آ گئی، اور نیند کے عالم میں نے کیا دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، آسمان سے زمین پہ نازل ہوئے اور میرے قریب بیٹھ گئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ اس سال حج بیت اللہ کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس نے کہا کہ 6 لاکھ لوگ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے آئے۔ اس فرشتے نے پوچھا ان 6 لاکھ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حاجیوں کے حج کو قبول فرمایا ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ حاجیوں میں سے کسی کے بھی حج کو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کا ایک نیک بندہ، محبوب بندہ جو دمشق کی سرزمین پر رہتا ہے، جس کا نام علی بن موافق ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نیند ٹوٹ جاتی ہے، میں پریشان کہ آخر وہ اللہ کا کون سا نیک ایسا بندہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا، 6 لاکھ حاجیوں کے طواف کعبہ کو قبول کر لیا، 6 لاکھ حاجیوں کے میدان عرفات کے رکنے کو قبول فرما لیا،
6 लाख हाजियों के तमाम हज के रुकन को उस बंदे की वजह से अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं, मुझे एक तड़प हुई और मुझे ये बहुत शौक़ लगा, मुझे ज़ौक़ हुआ और मैंने चाहा कि उस बंदे मोमिन से ज़रूर मुलाकात किया जाए कि आखिर उसने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी बुनियाद पे 6 लाख हाजियों का हज कबूल किया जा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं, मैं काबे से निकल पड़ता हूँ, मक्का मुअज़्ज़मा से सफ़र कर देता हूँ और चलते चलते जब दमिश्क में पहुँचा, मैंने अली बिन मुआफ़िक के बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि फ़ला जगह पर वो है। वहाँ तक कि मैं उसके घर पहुँचा, मैंने अली बिन मुआफ़िक से मुलाकात किया और मैंने कहा, अली बिन मुआफ़िक, आप ये बताएं कि आखिर आपने कौन सा ऐसा नेक काम किया है, महबूब काम किया है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस साल हज बैतुल्लाह करने वालों के सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। उस अली बिन मुआफ़िक ने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैं तो एक गरीब मुफलिस इंसान हूँ और मेरा काम यह है कि मैं हमेशा लोगों के जूतों को सिला करता हूँ, टाका करता हूँ और मेरे पास ऐसी दौलत भी नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, एक आरज़ू एक ज़माने से थी कि मैं हज बैतुल्लाह ज़रूर करूँगा, रोज़े रसूल की ज़ियारत ज़रूर करूँगा, मदीने की गलियों को ज़रूर देखूँगा, अपनी निगाहों से गुंबद खज़रा का दीदार ज़रूर करूँगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इसी तड़प और इसी दर्द में और इसी शौक़ व ज़ौक़ में मैं जूता सिलता था और जूते से सिले हुए जो मुझे पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसे खर्च के बजाय निकाल करके मैं अलग रखता था कि जब मेरे पास इतना माल हो जाएगा कि मैं हज बैतुल्लाह करने जा सकता हूँ तो मैं हज बैतुल्लाह के लिए जाऊँगा। खैर, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करता रहा। इस साल मेरे पास इतने पैसे हो गए थे कि ज़्यादा राह के लिए काफ़ी थे। हज बैतुल्लाह के जाने के लिए मैंने तैयारी कर ली और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में मैंने ऐलान कर दिया कि मैं फ़ला तारीख को हज बैतुल्लाह करने के लिए जाऊंगा। और जिस सुबह को मुझे हज बैतुल्लाह के लिए जाना था उसी की रात में मैं अपने घर में क़याम पजीर था। मुझे गोश्त की खुशबू कुछ महसूस हुई, तो गोश्त की खुशबू जब मुझे महसूस हुई पकने की तो मेरे दिल ने चाहा कि गोश्त खाऊं। मैंने समझ लिया कि खुशबू मेरे पड़ोस से आ रही है, लिहाजा मैं अपने पड़ोस के घर गया और मैंने अपने पड़ोसन से कहा कि मुझे भी गोश्त दीजिए ताकि मैं खा लूँ, मेरा जी चाहता है। पड़ोसन ने कहा, अली, ये गोश्त खाने के लायक तुम नहीं हो, ये गोश्त उनके लिए पकाया गया है जो मरने के करीब हो चुके हैं, ये गोश्त उन मुहताजों के लिए है, उन फाका कशों के लिए है, उन भूखों के लिए है, जो भूखों के लिए है जिनकी जान जाने वाली है, रूह निकलने वाली है, रूह परवास करने वाली है, लिहाजा तुम इस गोश्त के खाने के लायक नहीं हो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से हज़रत अली बिन मुआफ़िक फरमाते हैं कि सरकार, मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि मैं नहीं खा सकता और लोग खा सकते हैं। तो उस औरत ने कहा, अली सुनो, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ लेकिन मैं एक गरीब हूँ, मेरे बच्चे गरीब हैं, मुफलिस हैं, फ़कीर हैं, कई दिनों से मेरे बच्चे फाके पर हैं, लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं और उससे भीख मांगूं और अपने बच्चों खाने के इंतज़ाम करूं। आज ये आलम रहा कि मेरे बच्चे भूख की शिद्दत से तड़प रहे थे, करवट पे करवट बदल रहे थे, तड़प रहे थे और उनके भूख की शिद्दत का आलम यह था कि मैंने महसूस कर लिया कि अगर इन्हें खाना आज नहीं मिलता है तो मेरे बच्चे भूख की शिद्दत से तड़प करके मर जाएंगे। मैं बेतहाशा अपने बच्चों की भूख की शिद्दत को देख करके निकल पड़ती हूँ। मैंने सोचा लाओ घर से बाहर चलूँ, हो सकता है कोई चीज़ मुझे मैसर हो जाए, ला करके अपने भूखे बच्चों को खिला दूँ ताकि मेरे बच्चों की जान बच जाए, उनकी ज़िंदगी बच जाए, जाती हुई रूह परवाज़ न करे बल्कि रुक जाए। अली, मैं इसी बुनियाद से घर से बाहर निकली और निकलने के बाद मैंने देखा कि एक मुर्दार जानवर पड़ा हुआ है, उसके पास ठहर जाती हूँ, सोचती हूँ कि ये तो शरीयत ने हराम करार दिया है, लेकिन शरीयत मोहम्मदिया ने ये भी कहा है कि अगर जान बचाना इससे यकीन हो तो नाजायज़ चीज़ भी थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है अगर जान बच सकती है। मैंने ये ख्याल करके गोश्त का एक टुकड़ा काटा और काटने के बाद ला करके मैंने उसे पकाया है। ये अपने भूखे बच्चों को, प्यासे बच्चों को जो कई दिन से फाके पे गुजर रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए मैंने इसका इंतज़ाम किया है। अली, तुम इस गोश्त के खाने के लायक नहीं हो, ये वही मेरे गरीब बच्चे
भूखे बच्चे खाएंगे जिनकी जान जाने वाली है, जो तड़प रहे हैं, भूख की शिद्दत से मरने के करीब हो चुके हैं। अली तुम इसके मुस्तहक नहीं हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से अली बिन मुआफ़िक ने कहा कि जब उसने इस तरीके की मुझसे बातें की, मेरा दिल तड़प जाता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ। मैंने सोचा कि हज करने नहीं जाऊँगा, बल्कि ये हज के पैसे आज इस गरीब को दे दूँगा ताकि इस गरीब के बच्चों की परवरिश हो जाए, उसके खाने के इंतज़ाम हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैंने वो पैसे उस गरीब के घर पहुँचाया, उसे दे दिया और कहा कि लो, इसके ज़रिए से अपने बच्चों खाने पीने का इंतज़ाम करो, इसके बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं, अली बिन मुआफ़िक, तेरा यही एक काम, तेरी यही एक अदा कि तूने अपने हज के पैसे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज बैतुल्लाह तो करता, लेकिन इस पैसे को तूने जो हज बैतुल्लाह की अदायगी पे खर्च करता, उसको तूने आज एक गरीब, एक मुहताज, एक भूखे को उसको तूने खाना खिला दिया, खाने का इंतज़ाम कर दिया। तो रब ने तेरी इस अदा को इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि तेरी इसी अदा की बुनियाद पर कि तूने हज के पैसे को गरीबों को, मुहताजों को दे करके, भूखों को खाना उसे खिला करके तुमने वो दर्जा हासिल फरमाया है कि रब्बे कायनात ने तेरी इस अदा के बदले में 6 लाख हाजियों के हज बैतुल्लाह को कबूल फरमा लिया है। देखो ये हजरात, ये देखिए, ये है कि गरीबों, मुहताजों, फ़कीरों, भूखों खाना खिलाने का बदला कैसा अल्लाह अता फरमाता है कि उसके दर्जात को इतना बुलंद फरमाता है कि उसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला हज्जात बैतुल्लाह के हाजियों के हज को कबूल फरमा लेता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमाता है। हजरात, ये है गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा सवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला हाजियों के हज को उसके बदले कबूल फरमा लेता है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इनका भी एक वाक़या ऐसे ही है। आप इरशाद फरमाते हैं कि हज बैतुल्लाह का मौका जब करीब आया तो मैंने कहा अपने मुरीदों से कि साल में हज बैतुल्लाह के लिए जाऊँगा। हज बैतुल्लाह के अय्याम जब करीब आए, हज के वक्त करीब हो गया, तो मैंने 500 रुपये ले करके बगदाद की मार्केट में हज बैतुल्लाह के मुतालिक कुछ सामान ज़रूरियात के लिए लेने के लिए पहुंचा। और जब मैं बगदाद के बाज़ार में पहुंचा तो मुझे एक मुक़द्दस शहज़ादी, एक इस्लाम की खातून रूपोश, यानी पर्दे के अंदर रूपोश, मेरे करीब मेरी जानिब आती हुई मुझे नज़र आई, जिसकी चाल से मैंने एहसास कर लिया कि शायद ये मुक़द्दस शहज़ादी मेरे करीब आने वाली है। मैं ठहर जाता हूँ। वो मुक़द्दस शहज़ादी मेरे करीब खड़ी हुई आई। मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो उस शहज़ादी ने कहा कि मैं सैयद ज़ादी हूँ। मैं कौन हूँ? सैयद ज़ादी, अली की औलाद में से। मैं एक शहज़ादी हूँ, अली की औलाद, फ़ातिमा के औलाद में से। मैं सरापा बाअदब हो जाता हूँ, मेरी निगाहें झुक जाती हैं कि आले रसूल की एक शहज़ादी मेरे रूबरू है। मैं बाअदब हो जाता हूँ, मुअद्दब हो करके मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? उस शहज़ादी ने कहा, हाँ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कुछ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। हालांकि हमारे घर का दस्तूर तरीक़ा ये नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को किसी से बयान करें, किसी के सामने अपना हाथ फैलाएं। हमारे घर का दस्तूर तो ये है कि ख़ुद हम भूखे रहते हैं और गैरों को खिला देते हैं। भूखे रहें, फाके पे फाका करें, रोज़े पे रोज़े रखें, लेकिन अपने दरवाजे से किसी मंगते को वापस नहीं करते हैं। और हमारी गैरत गवारा नहीं करते कि हम अपने हाथ को किसी के सामने भीख के लिए फैलाएं। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मैंने सोचा कि आप आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, औलाद रसूल से मोहब्बत करते हैं। मैंने महसूस कर लिया, यकीन समझ लिया कि अगर मैं अपनी परेशानियां आपसे बयान करूंगी तो यकीनन आप मेरे इस राज को राज रखेंगे और मेरे राज को फाश नहीं करेंगे, ताकि मेरी गैरत भी बच जाए और मेरी शान भी बाकी रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उस शहज़ादी से अर्ज़ किया, ऐ मुक़द्दस शहज़ादी, आप बताएं मैं जिस लायक हूँ हाजिर हूँ। उसने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, मेरी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं मेरे पास, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी ज़्यादा नहीं हैं। और आज मुसलसल कई दिन हो चुके हैं, तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। वो भूखों प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हैं और उम्मीद लगती है कि अगर उन्हें
चंद लम्हात खाने नहीं मिलेंगे तो शायद उनकी रूह परवास कर जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हमने अपने ख़ानदान का लाज रखते हुए, ख़ानदान का लिहाज करते हुए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न फैलाने की हमें कोई उम्मीद लग रही है, लेकिन हमने तुम्हें देखा कि तुम आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हो। राज हमारा बाकी रहेगा, इसलिए हमने आपसे कह दिया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने इतना सुना मेरा कलेजा तड़पने लगा, दिल बेकरार हो गया कि मेरे नबी की आल की एक शहज़ादी अली मुर्तज़ा फ़ातिमा ज़हरा की एक शहज़ादी इतनी गुर्बत के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है कि उसके बच्चों के खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, उसके बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे हैं और मैं हज बैतुल्लाह करने के लिए जाऊँ। मैंने अपना 500 रुपया जो हज के ताल्लुक़ से सामान ख़रीदने के लिए गया था बगदाद की बाज़ार में, वो 500 रुपया मैंने उस शहज़ादी के हाथ पर रखा। देने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। आने के बाद मैं हज बैतुल्लाह के जाने का इरादा मैंने ख़त्म कर दिया और ऐलान कर दिया कि मैं इस साल हज बैतुल्लाह के लिए नहीं जाऊँगा। लेकिन जब हज बैतुल्लाह का वक्त ख़त्म हो जाता है और तमाम हुज्जाज हज बैतुल्लाह करने के बाद अपने अपने घर को रवाना होने लगे, बगदाद में मुझे पता चला कि कुछ हुज्जाज किराम के काफ़िले बगदाद में आए हुए हैं जो हज करके वापस हो रहे हैं, अपने वतन जा रहे हैं। मैंने सोचा कि लाओ कम से कम हज करने नहीं गया तो कम से कम जा कर के उन हुज्जाज किराम की ज़ियारत कर लूँ, उन्हें मुबारकबादियाँ पेश कर लूँ जिन्होंने खाने काबा का तवाफ़ किया है, अपने निगाहों से गुंबद खजरा देखा है, सरकार का शहर मदीना देखा है, मदीने की हसीन गलियों को देखा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक का दीदार फरमाया है। मैंने इरादा किया और इरादा करने के बाद घर से चल पड़ता हूँ। हुज्जाज किराम का एक काफ़िला बगदाद की सरज़मीन पर रुका हुआ था, वहाँ पहुँचा, मैंने सलाम किया, उन लोगों ने सलाम का जवाब दिया। मैंने हाजियों से कहा, हाजियों तुम्हें हज बैतुल्लाह मुबारक हो, खाने काबा का तवाफ़ मुबारक हो, गुंबद खजरा का देखना मुबारक हो, ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन मुबारक हो। जब मैंने उन्हें मुबारकबादियाँ पेश की तो हाजियों में से हाजियों ने मुझसे कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक आपको भी हज बैतुल्लाह मुबारक हो, तवाफ़ खाने काबा मुबारक हो, हजर अस्वद का चूमना मुबारक हो, आबी ज़मज़म का पीना मुबारक हो, सफ़ा मरवा की सड़ी मुबारक हो, मैदानी अरफात में ठहरना मुबारक हो। मैंने कहा, हाजियों मैं तो इस साल हज करने के लिए भी नहीं गया, आखिर मुझे मुबारकबादियाँ क्यों पेश की जा रही हैं? हाजियों ने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप अल्लाह के एक मुक़द्दस वली हैं, इस वक्त आपकी विलायत का डंका बज रहा है और आप किस बानी से यानी झूठ बोल करके हमें महसूस करा रहे हैं कि हमने हज बैतुल्लाह नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हमारी निगाहों ने आपको खाने काबा का तवाफ़ करते हुए देखा है, ग़िलाफ़े काबा को चूमते हुए देखा है, हजर अस्वद का बोसा लेते हुए देखा है, आबे ज़मज़म को पीते हुए देखा है, हमने सफ़ा मरवा पे सही करते हुए आपको देखा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इरशाद फरमाते हैं कि सुनने के बाद मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि मैं हज करने तो गया नहीं और जिससे मैं कहता हूँ कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए नहीं गया तो हर कोई यही कहता है कि आप वली होकर के झूठ बोलते हैं। हमने आपको खाने काबा में देखा, मदीने शरीफ में देखा, मैदान अरफात में देखा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इरशाद फरमाते हैं कि मैं इसी परेशानी के आलम में घर आता हूँ, रात हो जाती है, बिस्तर पर लेट जाता हूँ लेकिन नींद नहीं आती है कि आखिर वजह क्या है। जिस हाजी से मैं कहता तुम्हें हज मुबारक हो, उलट करके वो भी कहता अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम्हें भी हज बैतुल्लाह मुबारक हो। इसी परेशानी के आलम में मुझे नींद आ जाती है। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मेरा घर मुनव्वर हो जाता है, मेरे घर में खुशबू बस जाती है। अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं तो मैंने देखा मेरा पूरा घर नूर से भरा हुआ है और इस नूर के आलम में मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की ज़ियारत फरमा ली। देखा कि सरकार जलवागर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी नज़र पड़ती है, मैं सरापा अदब हो जाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ सरकार करम फरमाई पे आपका लाख लाख शुक्रिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक परेशान क्यों हो? तुम जब किसी हाजी को हज बैतुल्लाह की मुबारकबादियाँ देते हो तो लौट करके वो भी तुम्हें मुबारकबाद देता है, तो तुम परेशान हो कि आखिर मैं तो हज करने गया नहीं, आखिर मुझे क्यों लोग हज बैतुल्लाह की मुबारकबाद देते हैं। और जिससे मैं कहता कि मैं नहीं गया तो लोग कहते हैं कि वली होकर के झूठ बोलते हो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक परेशान मत हो,
تم تو حج بیت اللہ کرنے جا رہے تھے اور حج کے تعلق سے سامان لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن میری ایک غریب شہزادی جب تیرے قریب ہوتی ہے اور اس نے اپنے بچوں کی بھوک کا جب تمہیں احساس دلایا، تم سے کہا کہ میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک تم نے اپنا وہ پیسہ جس سے تم حج کرتے اور حج کا ثواب حاصل کرتے، وہ سارا پیسہ تم نے میری ایک غریب بیٹی کے اوپر خرچ کر دیا، اسے دے دیا، اس کے بھوکے بچوں کے کھانے کا انتظام کرا دیا۔ تو اور اس کے بعد تم نے حج بیت اللہ کا ارادہ ختم کر دیا کہ نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ ناز میں دعا کیا، پالنے والے عبداللہ ابن مبارک نے جس پیسے سے وہ حج بیت اللہ کرتا اور اس سے وہ نیکیاں کماتا، حج کرتا، حج کا ثواب پاتا، اس نے میری ایک غریب محتاج بیٹی پر، میرے ایک بھوکے بچوں پر اس نے خرچ کر دیا ہے۔ اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا، اور عبداللہ ابن مبارک تمہاری شکل میں اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا اور فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتے جا عبداللہ ابن مبارک کے بدلے میں حج بیت اللہ کی ادائیگی فرما، طواف کعبہ کر، طواف کعبہ کر، میدان عرفات میں ٹھہر، صفا مروہ کی سعی کر، پورے حج کے رکن کو ادا کر۔ عبداللہ ابن مبارک تمہاری شکل میں فرشتے کو لوگوں نے دیکھا وہاں پر ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، آب زمزم کو پیتے ہوئے دیکھا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا ہے، رمی و جمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ وہی فرشتہ جو تمہاری شکل میں تمہارے بدلے میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، اسی کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور سن لو عبداللہ ابن مبارک، تم نے میری بھوکی بیٹی، ایک میری قریب بیٹی کی تم نے مدد کیا ہے، اور یہ دعا میں نے کی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فرشتے کو پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے حج کرنے کے لیے، عبداللہ ابن مبارک اگر تم حج کرتے ان پیسوں سے تو صرف اسی سال حج کر کے 1 سال کا ثواب پاتے، لیکن اب قیامت تک وہ فرشتہ ہر سال تمہارے لیے حج بیت اللہ کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا رہے گا، تمہیں دیتا رہے گا۔ وہ فرشتہ صرف اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سال تمہارے بدلے میں حج بیت اللہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات دیکھا آپ نے، یہ ہے غریبوں کی مدد کرنے کا بدلہ، فقیروں کی مدد کرنے کا بدلہ، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بدلہ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، کس قدر اسے عطا فرما دیتا ہے، اس کی دنیا آخرت کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرات ہم آپ سے استدعا کریں گے کہ اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں جو لوگ غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، پریشان ہیں، ان کی امداد فرمائیں۔ زکوٰۃ و فطرات کے ذریعے تو کریں ہی کریں، اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنا ذاتی مال ان کے اوپر خرچ کریں، اور ذاتی مال کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ غریبوں کی مدد کرنے کی بنیاد پر آپ سب کو کورونا وائرس جیسے مرض سے محفوظ فرمائے، اور آپ سب کو ہمیشہ غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات انہی غریبوں میں سے بہت سے ایسے غریب ہیں، مفلس ہیں اور پریشان حال ہیں، جو اپنی غربت کو دوسرے کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ پوشیدگی میں میری غربت کا عالم رہے اور پردہ اس کا فاش نہ ہونے پائے۔ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے التماس کریں گے کہ ایسے لوگوں کا بھی خفیہ طور پہ آپ پتہ لگائیں، جو لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے ہیں، آپ سے کہہ نہیں سکتے ہیں، غیرت گوارا ان کی نہیں کرتی ہے کہ ہم کسی سے اپنی غربت کو بیان کریں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو پتہ لگا کر کے ان تک بھی آپ اپنا تعاون پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔